body which is given some initial velocity, a body which is given some initial velocity and then allowed to move under, a body which is given some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone, and then allowed to move under the effect of gravity alone, is called projectile. Is called projectile. And the path followed, and the path followed by projectile is called its trajectory. And the path followed by projectile is called its trajectory. Path followed by the projectile is called its trajectory. In projectile motion, as body is moving under the effect of gravity alone. In projectile motion, as the body is moving under the effect of gravity alone, therefore, as the body is moving under the effect of gravity alone, therefore, only force acting is in vertical direction. Therefore, only force acting is in vertical direction. As no force acts, as no Therefore, force, only force acting is in vertical direction. Therefore, in horizontal direction, acceleration due to acceleration is zero. In horizontal direction, acceleration is zero. As projectile motion is a two-dimensional motion. As projectile motion is a two-dimensional motion. Therefore, as projectile motion is a two-dimensional motion, therefore it can be solved as two one-dimensional motions. It can be solved as two one-dimensional motions. It can be solved as two one-dimensional motions. अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को हम अलग अलग ट्रीट किया करेंगे. सो फर्स्ट इज oblique projectile. oblique projectile में हमने बॉडी को से y एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
और ये वर्टिकल डायरेक्शन। हमने बॉडी को कोई वेलोसिटी दी u एट एन एंगल थीटा, तो ये बॉडी एयर में ऐसे मूव करेगी एंड लैंड समवेयर ओवर हियर। हमने इसमें निकालना है एक, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये बॉडी कितनी दूर जाके गिरेगी। अगर मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पे इसको थ्रो किया है, इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। और हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूं, तो जब ये बॉडी यहाँ पे कहीं पे है, इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसकी y और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x, तो हमें x और y में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वर्टिकल, तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे वेक्टर्स की तरह। अगर ये u है तो x डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट क्या होगा, ux विल बी UXI cap. u cos थीटा Yeah. और y And डायरेक्शन में u sin थीटा। एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही है, ग्रेविटी, g डाउनवर्ड्स। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम। जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है नीचे आने में भी उतना ही लगता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा टाइम लगेगा t। कितनी दूर गिरेगी इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी ऊपर जाएगी दैट इज मैक्सिमम हाइट। x और y में जो रिलेशन आएगा दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो पहले ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में लिखते हैं, पहले फिर शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशंस। So you can write so oblique done. projectile is, बन गया डायग्राम। Yes, sir. Oblique projectile is one in which oblique projectile is one in which a body is given some velocity u at an angle theta with horizontal, some velocity u at an angle theta with horizontal, and then allowed to move Some velocity u. at an angle theta with horizontal, and then allowed to move under the effect of gravity, and then allowed to move under the effect of gravity. Making components of velocity. Acceleration making component of velocity. U cos theta is velocity in horizontal direction, and u sin theta is velocity in vertical direction. Acceleration in
horizontal direction is 0, and in vertical direction it is g downwards. If point of projection is assumed to be origin, if point of projection is assumed to be origin, then after time t, the body has horizontal displacement x and vertical displacement y. First derivation is equation of trajectory. And consider horizontal direction. As body moves from initial velocity कितनी है horizontal direction में? U cos theta. Displacement in horizontal direction is x times t, acceleration is 0. Using x is equals to a 0 है तो second term 0 हो जाएगी. So x is equal to u cos theta into t. ये distance निकाल लिया हमने. अगर मैं similarly y direction लूं, y direction में initial velocity कितनी है? Y sin theta. U sin theta. Uy is u sin theta. Acceleration कितनी है vertical direction में? Acceleration Horizontal g में तो downwards. g downwards. तो downward. velocity की opposite है इसलिए we will write minus g. Time t or displacement y. Again using अगर ये सारी values मैं substitute कर दूं, y is equals to अब t किसके इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से देखो t T is equal to what is x upon u cos theta. yes. So you get u cancel, sin theta over cos theta is tan theta. gx square. So एक तो ये इक्वेशन बन गई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इसकी मैं फॉर्म चेंज भी कर सकता हूँ. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. वन ओवर cos square theta क्या होता है? 1 upon cos square theta is sec square theta. And secant square theta is Secant square 1 plus 1 tan plus square theta. yeah. ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की सेकेंड फॉर्म होगी. हम इसको लिख सकते हैं that this is basically as equation is of form
बिकॉज इस इक्वेशन से देखें तो a की जगह आ जाएगा tan थीटा और b की जगह g/2 u स्क्वायर cos का थीटा। सो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। सो बिकॉज ये पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, therefore we say path followed is parabolic, बिकॉज ये पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। पाथ फॉलोड और ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक। ये नोट कर दो, पहले समझ में आ रहा है कैसे किया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग सॉल्व किया है, वर्टिकल अलग है, तभी हमें वेक्टर से सॉल्व करना पड़ता है जो ज्यादा मुश्किल है। Yes, sir. Then you have to find maximum height और time of flight। So, उसके लिए पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ असेंट। So, इसकी डेफिनेशन लिख लो। टाइम ऑफ असेंट, it is time taken by the body, it is time taken by the body to move from point of projection to the maximum height, point of projection to the maximum height, time taken by the body to move from point of projection to the maximum height। मैथमेटिकली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन लें, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में? Maximum पे 0. 0। वेलोसिटी 0 होगी या वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी? Vertical direction में 0 होगी. तो वर्टिकल में 0 होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पे? Maximum height पे 0. इनिशियल कितनी थी 0. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इनिशियल Horizontal में वेलोसिटी 0 थी. कितनी थी 0. इनिशियल? Sorry, u cos theta. एक्सेलरेशन कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वो acceleration है 0. अगर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी चेंज करेगी? Acceleration नहीं, तो velocity नहीं change होगी. u cos मतलब theta हर ही जगह रहेगा. पे u cos थीटा ही होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह पे u cos थीटा। अगर मैं डायग्राम एक बार फिर से बना दूं, हम ले रहे हैं कि बॉडी ऐसे गई है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे भी u cos थीटा होगी, यहाँ पे भी u cos थीटा होगी, हर जगह पे पूरे पाथ में u cos थीटा ही होगी। वर्टिकल वेलोसिटी इधर u sin थीटा हाईएस्ट पॉइंट पे 0 और यहाँ पे फिर u sin थीटा डाउनवर्ड्स। तो कंसिडर वर्टिकल डायरेक्शन, हमने ये बताना है यहाँ तक जाने का टाइम। इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ए। From O to A, initial velocity is u sin theta, final velocity is 0, acceleration is minus g, time is v minus u upon A, so it's u sin theta by g, सिर्फ ऊपर पहुंचने का टाइम। अगर मेरे को A से B, O से B तक का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहते हैं टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर। So time of flight, it is the time for which
An oblique projectile remains in air. It is the time for which oblique projectile remains in air. Consider vertical direction. Final velocity कितनी है B पे? फाइनल Vertical वेलोसिटी B पे वर्टिकल पे सेकंड 0 ये 0 है u sin थीटा और डायरेक्शन डायरेक्शन टुवर्ड्स p टुवर्ड्स एक्सिस डाउनवर्ड्स. यहाँ वेलोसिटी अपवर्ड्स थी या डाउनवर्ड्स थी. तो अगर मैं इनिशियल को u sin थीटा लेता हूँ, फाइनल इज, बिकॉज हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तभी एक्सेलरेशन को भी माइनस जी लिया. सो माइनस u sin थीटा अपॉन माइनस जी. इसको आप हमेशा ऐसे याद रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज twice of vertical velocity upon acceleration in vertical direction. क्यों ऐसे ले रहा हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा. नॉर्मल स्कूल एग्जाम में इससे ज्यादा ऊपर नहीं आएंगे, यही पूछेंगे, बट ये आगे जाके थोड़े जब मुश्किल न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा. नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट निकालनी है. अगर तो कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल वर्टिकल. Consider vertical direction for motion from A to B. Sorry, O to A. Initial velocity है O पे u sin थीटा. A पे vertical velocity कितनी है? a पे वर्टिकल वेलोसिटी थी Highest point पे. a पे थी u cos थीटा वो तो horizontal थी. 0 थी सॉरी Vertical 0 थी. Acceleration है माइनस जी और हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी है. ये हमें नहीं पता. h बेसिकली. So, इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग so maximum height is u square sin square theta by 2g. इसको भी आप याद रखोगे इस फॉर्म में, दैट मैक्सिमम हाइट इज टू यू वाई स्क्वायर बाय 2ay. हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितनी दूर जाके गिरी है बॉडी. हमने यहां से थ्रो की ये डिस्टेंस बताना है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करें या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u cos थीटा एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 O से B तक जाने का टाइम, t उसकी वैल्यू अभी निकाली पीछे. टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट की एक सेकंड ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट सो 2u sin थीटा बाय g. 2u sin थीटा बाय g पहले डेफिनेशन लिख लो. हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. It is the maximum displacement of oblique projectile. It is the maximum displacement of oblique projectile in horizontal direction. Maximum displacement of oblique projectile in horizontal direction.
Consider horizontal direction. Initial velocity is u cos theta. Acceleration is 0. Distance traveled is r. R is equals to, ये तो 0 हो जाएगा because a 0 है. So u into t. This is r is equals to 2 cos theta sin theta क्या होता है? sin square theta, sin 2 theta, sorry. Sin 2 theta. So ये रेंज का फॉर्मूला आ गया. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो. Because u cos theta is ux, u sin theta is uy. So 2ux uy by ay. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? For a given velocity. मतलब थीटा चेंज करेगा तो वैल्यू भी चेंज करेगी. For a given value of u, r will be maximum when. अगर ये कांस्टेंट है तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? r की वैल्यू मैक्सिमम होगी If r constant, sin it 2 will theta remain the maximum, same, I guess. r की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा. sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. sin की वैल्यू 1 से 90 ज्यादा degree. तो हो ही नहीं सकती. That means 2 थीटा किसके इक्वल? 90. मतलब बॉडी को 45 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी. Given value of u. Complementary angles. Complementary angles कौन से होते हैं? जिनका सम 90 हो. Range will be same. मतलब अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो उनकी रेंज सेम होगी. If theta 1 is equals to theta, तो range is theta 2 फिर किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, बिकॉज दोनों का सम 90 होना चाहिए. u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा. और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या वैल्यू? sin 180 minus 2 theta. साइन 2 थीटा के इक्वल ही होता है. ट्रिग्नोमेट्री 11th की. तो मतलब जो रेंज थीटा 1 के लिए आ रही है वही थीटा 2 के लिए भी आ रही है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. रेंज इज सेम फॉर बस इन दोनों का सम भी 90 है. 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा. सो अगर मैं आपको बोलूं 37 डिग्री के लिए रेंज आर है तो और कौन सा एंगल होगा जिसके लिए रेंज आर होगी? 54. 53. 53 है. सम 90 होना चाहिए ना. हाँ. सो दो एंगल्स का अगर सम 90 है तो उन दोनों के लिए रेंज सेम आएगी.
सो पहले ये वाली सारी डेरिवेशंस करके देखो, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पहले. ओके सर.